Hello everyone. In this video we are going to discuss about the NEET 2024 question paper, and our first question is that the horizontal force 10 Newton is applied to block A कि हमारे block A पे 10 Newton force लग रही है और A and B का मास है हमारे पास 2 and 3 kg और जो हमारे पास blocks हैं they are on a frictionless surface and we have to calculate the force exerted by block A on block B. And we know very well that the formula to calculate the force is equals to mass into acceleration. Here जिस ब्लॉक पे हमने निकालनी है कि फोर्स लग रही है that is 3 kg on block B, and the formula to calculate the acceleration is force upon mass. Here force we have 10 and mass means total mass. Total mass 3 plus 2 5. दोनों को कट करोगे then we get 2 and 3 into 2 is equals to 6 Newton. So here our answer is 4th. In next question we have an equation where alpha particles, positrons and electrons are emitted in an equation. So we have to find the mass number and atomic number of the product Q. तो स्टार्टिंग में हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं दे हैव एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4. तो यहाँ से हम एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 जो है वो कम कर देंगे, ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी गेट Y 80 एंड मास नंबर 286. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा. नेक्स्ट में हमारे पास एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल बाहर आ रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा एंड मास नंबर रिमेन सेम. एट लास्ट एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, इट मीन्स 81 atomic number increases and mass number remains same. Here the option is 286 and 81. First option is the correct answer. In this question, consider the following statements A and B and identify the correct answer. उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया है and our first option is for a solar cell, the IV characteristics lie in the fourth quadrant of the given graph. And this statement is true because in solar cell the current is in negative direction. तो हमारे पास current negative कब होगा? When it is in the fourth quadrant. तो हमारे पास first option सही है. Second दिया है in a reverse biased PN junction diode, the current measured in microampere it is due to majority charge carriers. No, this is wrong. जो reverse biased है this is due to minority charge carriers. तो हमारे पास सिर्फ A ऑप्शन सही है एंड जो B ऑप्शन है वो गलत है. It means our answer becomes second. A is correct but B is incorrect. In fourth question they have given at any instant of time the displacement of any particle is given by 2t minus 1 SI unit. Under the influence of force of 5 Newton, the value of instantaneous power is. तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है F into V. Here force they have given 5 और हमने वेलोसिटी निकालनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2t minus 1. वेलोसिटी निकालोगे डेरिवेशन से तो ds r dt is given by velocity, like ds over dt फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे we get 2, तो 5 into 2 is equals to 10. हमारा आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन 10. In fifth question they have given a wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. तो इनका मतलब कहने का हुआ कि each part have resistance is equals to R by 10. The 5 parts are connected in series. तो उसमें से first 5 part हमने series में connect कर दिए,
तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो r/10 प्लस r/10 प्लस r/10 अप टू 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू r/10, यहाँ से हमारे पास आया r/2। ये रेजिस्टेंस आया हमारे पास सीरीज के लिए। नेक्स्ट है वाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट 5 पार्ट्स हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स 1/r/10, 1/r/10, 1/r अप टू 5 टाइम्स। तो पैरेलल में हमारे पास आएगा r/50। नेक्स्ट है द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 प्लस r/50 विच इज इक्वल्स टू 52r/100 और हमारे पास रेजिस्टेंस है 100। तो 52 इंटू 100 अपॉन 100 कैंसल एंड आवर आंसर बिकम्स 52 ohm. Third option is the correct answer. Now move to the next question. In this question, a thermodynamic system is taken through a cycle A, B, C, D, A. एक साइकिल गिवन है हमारे पास A, B, C, D, A. The work done by the gas along the path BC. हमने BC, सपोज ये हमारे पास एक साइकिल है A, B, C, D and A. इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो हमने BC डायरेक्शन में वर्क डन कैलकुलेट करना है। वी हैव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू P इंटू DB। तो इन BC साइकिल हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है देन वर्क डन इज ऑल्सो 0. Option second is the correct answer. In this question, a tightly wound 100 turns coil of radius 10 cm carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. हमने एक coil के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज आवर कॉइल, यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है 7 एम्पियर। तो सेंटर में हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमने वो कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0Ni/2R। वैल्यू ऑफ μ0 इज इक्वल्स टू 4π22/7 10⁻⁻⁷. Number of turns we have 100. Current is 7 ampere upon 2 into R. Radius we have 10 centimeter. तो 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो इट मीन्स हमारे पास ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 2 से इसको कट करोगे 11, 7 को 7 से कट किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 44 इंटू 10⁻⁻⁴. वी कैन राइट इट 4.4 मिली टेस्ला। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो आएगी वो हमारे पास एक राइट ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm. तो उन दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अटैच कर दिया तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 ohm. तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E minus I into R. Here we have given E is equals to 10 minus I into R. इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड करंट वी कैन फाइंड V is equals to I into R. I is equals to V over R. Here the value of V is 10 and डिवाइड में आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो 4 + 1 हमारे पास आया टोटल रेजिस्टेंस। दोनों को कट करोगे वी गेट 2। 10 - 2 आंसर इज 8 वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इन 9th क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। क्या मेंटेन रखता है जब हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है? तो आप देखो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होती ही जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा।
तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बनेगी वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन, a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. तो हमने फोर्स निकालनी है। टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स विच इज इक्वल्स टू T into L. सरफेस टेंशन दे हैव गिवन 0.07। डिस्क है तो उसकी लेंथ होगी 2 पाई r। ओके, 0.07 to value of pi to 22/7 radius we have 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इट मीन्स उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे बिकॉज यूनिट्स जो हैं हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो 100 अपॉन में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन वी गेट 7 से 7 कैंसिल। ओके, तो हमारे पास 44 इंटू 45 मल्टीप्लाई बाय, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 zeros हैं तो 10⁻⁵। 44 को 45 से मल्टीप्लाई करके वी गेट 1980 10⁻⁵। ओके, here 19.80 इंटू 10⁻⁻3। ऑप्शन जो हैं हमारे पास मिली न्यूटन्स में है तो 19.8 मिली न्यूटन। तो हमारे पास 19.8 जो है वो करेक्ट ऑप्शन आया। एंड ऑप्शन वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर